everyone, welcome to your own channel, My Passion Teaching. As you know, your last lecture was on differentiation, but it's differentiation from where it starts and everything in that video. Make sure you watch that video. It's very helpful for you. Now next, we will discuss about some important formulae that help you in your exam to crack that exam. If you want more videos like that, you know where to comment. Also, if there is any advice or any problem regarding the subject, regarding your syllabus, you know where to comment. Is it slow or fast, or it okay? Also, you can suggest me which type of syllabus or which type of next topic you want. Clear? So let's start differentiation part 2. Like this video, share this video and subscribe my channel. Now question is, first of all, derivative of function in chain rule. If there is y is equal to ft and t is equal to phi x, then dy of dx, how will you find? You know that if you put dy over dt, dy is the function of t, so dy over dt and t is a function of x. You got it? इनको आप डिफरेंशिएट करो, ये आपके पास dy over dx की फॉर्म में आ जाएंगे. नेक्स्ट है, अगर डिफरेंशिएशन हो एक इम्प्लिसिट फंक्शन की, मतलब ये कि x जो है वो phi t है और y psi t है, तो dy over dx कैसे निकालोगे आप? एक पैरामीट्रिक फंक्शन है ये, तो हम निकालेंगे यहाँ पे जो आपका dx है, dy over dt इंटू क्या आएगा आपके पास dt ओवर dx, या फिर सिंपली आप लिखो dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt को आप अलग अलग फाइंड आउट कर लीजिए और आपको ये समझ आ जाएगा. नाउ fxy इज इक्वल टू 0. अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन की मैंने बात की थी, अगर आपके पास x और y कनेक्टेड है इन रिलेशन फॉर्म, दैट इज f ऑफ xy 0 के बराबर कोई आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोला है जो अगर y है उसको हम x की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आपने क्या करना है, उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ गिवन रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x. यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बट कीप इन माइंड दैट dy over d phi over dy is dot dy over dx is equal to d phi over dx. This is important key point in this type of functions. ठीक है? Now differentiation of a function with respect to another function. Let u is equal to fx and v is equal to gx. Now you have to find the derivative of fx with respect to gx. What will you do? You will do du over dv, that is equal to du over dx, or v du dv over dx. It look like du over dx and dx over dv. Clear? इस टाइप के फंक्शन के लिए आपने ऐसे करना है. ठीक है? नाउ मेन प्रॉब्लम इज व्हेन वी कम अक्रॉस द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which involve lengthy calculation. You know, in the difference in the inverse trigonometric function, you know there is a very lengthy calculation. Then we use the method of substitution. These are some substitution regarding this. If function contains a square minus x square, then put x is equal to a sin theta or x is equal to cos theta according to your question. If there is a square plus x square in the function, you will put x is equal to a tan theta or x is equal to a cot theta. Clear? Now if function is a minus x upon a plus x, then you put a is equal to a cos theta or x is equal to a cos 2 theta. Now the next topic is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation आप कहाँ यूज करोगे, कब कब यूज करोगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको पता है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. Now, when we use logarithmic function, number one, the function consists of the product of number of functions. Number two, the function consists of the quotient of a number of functions. Last is the function of x is raised to the power, which is itself a function. Clear? Now it works on like if y is equal to fx power gx,
where fx and gx both are function, you have to take log both sides. That is log y is equal to log of this, that is gx. You know log formulas. If you don't know, watch my playlist and you will get the answer. Clear? Gx and log of fx. You know that. Now differentiate it with respect to y. Clear? Now one thing you know, that log of u plus v is not equal to log of u plus log v. Log of u plus v is not equal to log of u plus log v. You know that. Keep in mind. Now next is differentiation of infinite series. Now infinite series, you know this type of series, y is equal to fx, fx and fx. Now this is a short trick for this type of question. Dy of dx you will find from f dash x to y minus 1. Clear? Next, this type of y is equal to this, you will got this. And main differentiation of a determinant. How will you find that? In this case, assume p, q, r, u, v, w, l, m, n. Everything is function of x. Clear? You have to put dy over dx is equal to like that, dp over dx, dq over dx, dr over dx, and remain as it is, l, m, n. Plus, next case, don't touch these two lines, two rows, and differentiate this with respect to x. And last, you will remain first or second row remain as it is, and differentiation this with respect to x. But in this case, if there is u, v, w, l, m, n are constant, then the answer should be this. Clear? Now next, higher order derivatives. For example, y is equal to f of x. You have to differentiate it with respect to x only. Now, then you write dy over dx. Now derivative of dy over dx with respect to x, again derivative, then it is d2y over dx square. This is called second order derivative. Now if you do derivative of y with respect to x n times, यानी कि nth order derivative, that is d and y over dx n. Clear? There is a lot of short trick on these type of higher order derivatives. If you want that, you know where to comment. Now let's try some examples related to this. If you want screenshot of this, you can take it. Now question number 1 is, if y is equal to sin x raised to power 10x, you have to find dy of dx is equal. Now first of all, you know where is the logarithmic differentiation used? Here. Now taking log both sides, log y is equal to 10x or dot log sin x. Now next step is differentiating with respect to x, and log y differentiation is 1 upon y, dy over dx is equal to secant square x log sin x. Here we will use differentiation by parts. First, differentiation of first function, second remain as it is, sin x m, plus first as it is, differentiation of second function sin x cos x. You know differentiation of sin x, log sin x is equal to, first of all log formula, that is log is equal to 1 upon function that is sin x, and differentiation of sin x, again you know that log of y with respect to x 1 upon y, and differentiation of y again here also. तो sin x differentiation क्या होगा आपका, cos x होगा. Clear? That's why this. So dy over dx, y वहां चला जाएगा आपका, sin x रेज टू पावर 10x, y की वैल्यू यहां जाएगी तो मैं इसकी वैल्यू यहां से पुट कर रही हूं, ठीक है, और कुछ नहीं किया यहाँ पे. साथ में अंदर आ जाएगा आपके पास secant square x log x
और यहाँ से हम ये कॉमन भी ले चुके हैं बाहर, सो दैट इज सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये कैसे आया है? cos x ओवर sin x होता है cot x, और cot x को हम चेंज कर सकते हैं 1/tan x, तो यहाँ से कटोगे तो यहाँ 1 आ गया। क्लियर? सो ये आपके पास इक्वेशन आपके आपको फॉर्मूले जो आपका ऑप्शंस होंगे वहां पे आपके पास कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपको। क्लियर हुआ? आपने कितना इजिली ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log ऑफ x plus y minus 2xy is equal to, you have to find y dash 0. Y dash 0 is also a differentiation of y, but 0 is the value at which you find. Let's try this question also. Log of x plus y is equal to 2xy. Clear? Differentiation with respect to x. You know that. जब भी हम log की डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मूला लगता है 1/xy, x plus y, ठीक है। और साथ में क्या आएगा? 1 प्लस dy ओवर dx। इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो x का करोगे x से तो 1 ही आ जाएगा और इसका x आ जाएगा, ठीक है। 2xy का आ जाएगा 2y। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2y को, 2 और y कांस्टेंट ही होंगे आपके पास जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। 2y इज कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इसको भी हमने कौन सा पार्ट यूज किया, जो हमने यहां पे यूज किया, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। क्लियर? 2 is constant and x and y are two functions. So first of all, x with respect to x 1 and y with respect to x. Clear? डिफरेंशिएशन यहां तक तो आते होगी आपको, बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नाउ इट विल बी 1 प्लस एक्स वाई माइनस 2y। इसको हम इस साइड ले आते हैं और dy ओवर dx की टर्म को हम उस साइड ले जाते हैं। ये तो आपको पता ही होता है क्या करते हैं हम आगे। dy ओवर dx, और dy ओवर dx कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 1/x प्लस वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1/x प्लस वाई। अब ये देखिए घबराना नहीं, आपको पूछा है y डैश 0, यानी कि y डैश 0 का मतलब हुआ कि y डैश x जो है वो, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू आपको 0 दी है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे 0, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0 एंड आपको फाइंड आउट करना है कि y की वैल्यू कितनी आएगी फिर, ठीक है। तो dy ओवर dx जब हम यहाँ पुट कर रहे हो तो आ जाएगा 1/0 प्लस 1, और y की वैल्यू जो है वो 1 है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, हम ये ले रहे हैं, ठीक है। सो 1/, यहाँ पे 1/0 प्लस 1 1 ही आएगा, -2 एंड 2x तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका y डैश इज इक्वल टू 1। सो ये आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा। सो क्लियर हो गया आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देती हूं मैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ yx इज इक्वल टू xy देन dy ओवर dx जो है आपने फाइंड आउट करना है। इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, x y ओवर x फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है y ओवर x, x log y माइनस y डिवाइडेड बाय y log x minus x, and third option is x over y, and fourth option is x log y divided by y log x। ठीक है, ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और आपको ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताती हूँ आपके लिए। तो अगर एक्स एम वाई एन है, सॉरी मल्टीप्लाई है, तो आपका और ये इसके बराबर है x प्लस वाई एम कौन है, तब हमें पूछा जाए कि dy ओवर dx किसके बराबर होता है, तो वो होता है y ओवर x, है ना एक शॉर्ट ट्रिक। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, और इसी टाइप की शॉर्ट ट्रिक अगर आपको और चाहिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड तो यू नो वेयर टू कमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि इज इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको करना है कि किसके बराबर है। तो अब हम इसको देखते हैं हम कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कुछ इसको मैं ऐसे यहाँ ऐड कर दूं और d ओवर dx और dy ओवर dx करूं तो लिख सकते हो आप ऐसे इसको। ये इनवर्स है ना इसका, यानी कि dy ओवर dx है ये एक टाइप से। तो d ओवर dx यानी कि d2y और नीचे आ जाएगा dx स्क्वायर, और इससे अपोजिट होगा तो वो ये कट हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं सॉरी,
हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स लिखो आप सबसे पहले, लिख दिया, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियरली लिख सकते हो। तो ये चीज आ जाएगी डी ओवर डी एक्स ओवर डी वाई इनवर्स। अब ये चीज कैसे आई, डी ओवर डी एक्स इनवर्स डी वाई, ये चीज इसमें लिख सकते हो। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में इसको ही डिफ्रेंशिएट करूं तो आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी वाई, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो वही चीज मैं लिख रही हूँ और कुछ नहीं लिख रही हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, you can write it like that. Now it should be like dx over dy raised to power minus 2 d2x over dy square dy over dx and minus d2y over dx square dy over dx raised to power minus 3। अब देखो मैंने ये लिख दिया कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब दिमाग आपने लगाना है कि इसको मैंने कैसे लिख लिया, ठीक है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये दिया हो या फिर कुछ भी यार डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिए रखा हो, तो उसको आपके ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इसको आप किन में से किस फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो हमने बात की थी डिटर्मिनेंट की, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, तभी आपको क्लियरली समझ आएगा ना। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको पता है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। एक्स क्यूब 6p sin x minus p square and cos x 0pq where p is constant। ये आपको क्लियरली बोला है कि p कांस्टेंट है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपली आपको हर बार ऐसा नहीं आएगा कि आपको फर्स्ट ही ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है, आपको फाइंड आउट करना है थर्ड ऑर्डर f ऑफ x एट x, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई साथ में 0, कर सकते हो आप, ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। डी ओवर डी एक्स है और एफ ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको तीसरे तक इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे आप, आपको करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और इस टाइप की वीडियो आपको चाहते हो, और मेनली मैंने आपको इस चैप्टर का एक मेन हिंट दिया हुआ है कि अगर आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे और भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आपको पता है कि आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी वीडियो आ सकती है, ठीक है। सो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बोला था p जो है वो कांस्टेंट है, वो टर्म तो हम करेंगे नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो में जो चीजें दी हुई हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस cos x, यू नो क्या क्या इनके होते हैं, माइनस sin x 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यू। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको ये चीज बताई यहाँ पे, ये जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सारे फंक्शन है तो सबका होगा और प्लस में लिखेंगे हम, और अगर एक ही और बाकी ये नहीं दिए तो हमने सिर्फ जो दिया होता है उस पार्ट का ही करना होता है डिफरेंशिएशन। तो बाकी अगर आप करोगे कि भी इसका करोगे, इसका इनका सबका कांस्टेंट है 0 आ जाएंगे, प्लस जीरो आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक का हो गया, सेकेंड टाइम आप इसको ट्राई करो तो वहां पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। इतना तो आपको समझ आ गया कि यहाँ मैंने क्या किया, ये है डबल डेरिवेटिव के लिए, यहाँ तक हम डबल टाइम हमने कर दिया, ठीक है। अब ट्रिपल टाइम पूछा है तो आपको ट्रिपल टाइम भी करना पड़ेगा, डी क्यूब एफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो वो आ जाएगा आपका 6 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड 6 माइनस 1 0 एंड p स्क्वायर p क्यूब। ये आगे 0 0 लिखो ना लिखो वो आपको मैंने हिंट बता दिया, जरूरी नहीं होता वो आगे आप करोगे कांस्टेंट टर्म दी हुई हो तो। सो हमें यही चीज चाहिए थी और साथ में आपको दिया था कि x जो है वो 0, तो अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्यूब यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दो, x यहाँ लिख दो और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिख दो, वो तो डिफरेंट लिखना जब आपने सॉल्व करना है, पेपर टाइम में तो आपको सिर्फ सॉल्व भी करना होता है। तो 6 p minus 1, you know cos x is 1, that is minus 1, और cos sin x is 0 minus 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। कितना आसान है, देखने में लगता है ना कि अगर आपको पेपर आ जाएगी, आपको क्वेश्चन आ जाएगी, आपको डिफरेंशिएट करना है एक डिटर्मिनेट को, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है मैट्रिक्स के केसेस में। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, होप क्या आना भी चाहिए अब, ठीक है।
तो इस टाइप के वीडियोस अभी देखो हमने और चीजें भी की हैं, मैंने आपको और चीज भी बताई थी इनके इस टाइप की डिफरेंशिएशन में आपने ये फॉर्मूला लगाना है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। तो फिर आपने क्या क्वेश्चन करना है, y इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस सो ऑन इनफाइनाइट, और यहां तक, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। फॉर्मूला आपको पता है dy ओवर dx हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैंने आपको पीछे करवाया फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू f डैश x और 2y माइनस 1। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन 5 सेकंड से कम में निकल जाएगा, ठीक है। तो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है, और आपको इस टाइप की वीडियो ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि हम डिफरेंशिएशन पे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसमें हम थर्ड पार्ट लेके आए, नहीं तो हम अगले पे जाएंगे, अगले टॉपिक पे जाएंगे, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए तो उस पर वीडियो हम लेकर आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू।